Chale, okay. Let's just begin. Today, basically, we're starting chapter number 2 of computer graphics. Now, okay, so this is chapter basically which we will be discussing about various geometrical shapes and how we create those geometrical shapes in graphics like we discussed previously. So in this course, basically we will be covering line drawing, circle drawing, and filling the polygonal objects. Line, how we create line, and there are various 2-3 algorithms that we will be discussing. 2-3 different algorithms of how we can draw line. Similarly, how can we draw a circle inside our graphic system? Given some parameters, how we draw those, what are the algorithms for that? Similarly for the line, and then filling in the polygons. What are polygons? How they are used? Again, that will be discussed as we go along. Okay. So we start with a basically interactive graphic system. How does an interactive graphic system works? This system works with what we call application model, application program, and then graphic system. मीन्स के आपके पास एक मॉडल है, उस मॉडल को आपने एक अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डाला, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उसने वो ग्राफिक्स सिस्टम को दिया जो कि हमारे हार्डवेयर है, जो कि फॉर एग्जांपल व्हाट वी रिफर टू इन टर्म्स ऑफ VGA, वो चीज हमारे पास कंप्यूटर के अंदर फिर प्रेजेंट होती है. सो दिस इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेइंग पाइपलाइन बता रहा है दैट इफ आई हैव टू डिस्प्ले द ग्राफिक्स, वी टेक द मॉडल व्हिच इज एल्गोरिथम, व्हिच इज आवर बेसिक कोड, we take that code, we put it inside an application program, like for example C++, like for example MATLAB, like for example Java. Then we put it inside a graphic system, which basically represents a VGA card or a driver, that how that system is supposed to be displayed, and then we basically put it on the monitor. Now, this is basically what we say application model. In other words, just simple definition in terms of terminology. That what do we mean application model? Application model represents data and objects to be displayed on the object. Meaning line, तो line हमारे पास एक data है, उसका algorithm है, उसके shape को हमें display करना है. How should we display that? So application model basically represents that. The line, square, rectangle, shape, whatever object we have, whatever object we want to create on the screen, हम वो किस तरह से करें. Then we have application program. Creates, stores into and retrieves from the application model. Creates, like for example Java, like for example MATLAB. They create this algorithm, they create these objects, store these objects, retrieves and presents them onto the screens. Then sends the you handle the user input, sends out commands to the graphic system, blah blah blah. Okay. Then graphic system intermediate between the application program and interface, output cause application program. Let's just skip this because ये चीजें मैं छोड़ना चाह रहा हूँ. Then basically this is whole ये शुरू की दो slides हैं. They are all talking about कि graphics screen पे नजर कैसे आती है. हमने algorithm बनाया, algorithm बनाने के बाद उसको application में implement किया, application implement करने के बाद उसको graphics drivers के through हमने display कराया. Simple 3 layers में इसको हमने divide किया. ठीक है. उसके बाद we would be talking about the algorithm. ये इसीलिए कि हमने इसको मैंने कहा था कि एप्लीकेशन हम उसके ऊपर भी बात करेंगे. हम इसके जो एप्लीकेशन मॉडल है, तो पहले हम मॉडल बनाएंगे, उसके बाद इसका एप्लीकेशन प्रोग्राम में इस मॉडल को इंप्लीमेंट करेंगे और फाइनली इसका हम आउटपुट देखेंगे. तो ये वो 3 चीजें जो हमने इंप्लीमेंट करनी है. ठीक है. इस पाइपलाइन के हिसाब से सिर्फ ये समझो, क्योंकि आगे की थ्योरी इज नॉट इंपॉर्टेंट और मैं स्किप करने वाला हूं ऐसे. दिस इज व्हाट जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड. वी क्रिएट एप्लीकेशन मॉडल. एप्लीकेशन मॉडल मींस creating the model, creating the algorithm. Creating the algorithm for the objects that we are going to implement or that we are going to display on our graphic system. वो models, वो graphics जो हमें screen पे दिखानी है, उसको किसी application के तहत मैंने code किया. Once I code that application, I go back to my graphic system and display the output based on that model. बात समझ आई? 3 चीजों के हिसाब से. उसके बाद अब ये जो graphics हम start कर रहे हैं बिल्कुल end से. For example, we start with the graphic system and then we go back here. So this is basically the graphic system we're talking about. The CRT monitors, the monitors that how they work, how those graphic system basically show us the graphics onto the screen. Now, I'm sure आप लोगों को CRT monitors का basics पता होगी. CRT किसके what does it stand for CRT? Cathode ray tube. Thank God. What do we mean by cathode ray tube? क्या मतलब होता है? Brother, what do you mean by cathode ray tube? करे खुद है CRT, cathode ray tube. हजरत लास्ट में ब्रदर
ब्रदर यस, वो ट्यूब हम कैथोड रे पास करते हैं। चलें ठीक, क्या मकसद, थोड़ा सा और इलैबोरेट करो। चलें ठीक, ब्रदर ठीक है, कैथोड रेज होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिकली सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। इट इज अ मैकेनिज्म that is used on all the televisions and monitor systems that we use. ये जो मॉनिटर्स पड़े हैं या इस तरह के जो बड़े टीवी सिस्टम्स हैं वो तमाम के तमाम कैथोड रे ट्यूब टेलीविजन सेट्स या कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कहलाते हैं। ये मॉनिटर्स टीवी वाले पड़े हैं या जो बड़े पड़े हैं, एलसीडी एक अलग प्रिंसिपल है, प्लाज्मा टीवी अलग प्रिंसिपल है, ठीक है, एलईडी एक अलग प्रिंसिपल है। ये अलग तीन टेक्नोलॉजीज हैं डिस्प्ले करने के लिए। जो प्रीमिटिव पहले बनी थी वो सीआरटी थी, ठीक है। CRT uses a cathode ray tube. By this we mean that it has this tube inside this monitor या television. Behind this cathode ray tube there is a cathode ray gun. एक चीज कहलाती है cathode gun, which emits cathode rays. कैथोड जो है उसकी रेज इमिट करती है, जिसके अंदर फॉस्फोरस होता है, कुछ केमिकलाइज्ड रेज होती हैं, और इसके सामने यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हमारे पास एक फॉस्फोरस की शीट लगी हुई होती है। जो ग्रे स्क्रीन हमें नजर आती है, फॉर एग्जाम्पल मॉनिटर बंद है तो जो ग्रे हमें स्क्रीन नजर आ रही है ये फॉस्फोरस की शीट है, इलेक्ट्रॉन्स और फॉस्फोरस की प्लेट है। पीछे से कैथोड रे आती है, इसके ऊपर स्ट्राइक करती है, एक एक रे आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एक पार्टिकल के सूरत उसको स्ट्राइक करती है। तो स्ट्राइक करने के नतीजे में वो जो फॉस्फोरस की शीट लगी हुई है इसके सामने, जो कोटिंग लगी हुई है ग्रे कलर की, वो जलती है। वो जलने के नतीजे में कोई ना कोई कलर प्रेजेंट होता है, और फिर इस तरह से पूरी रेज जब पूरी स्क्रीन पे लगती है तो पूरी स्क्रीन जलती है और इसकी वजह से तस्वीर तख्लीक में आती है। दिस इज हाउ बेसिकली सिंपल कैथोड रे ट्यूब वर्क्स। अगेन इन अ कैथोड रे ट्यूब देयर इज ए फॉस्फोरस शीट पुट इन फ्रंट ऑफ इट, जो हमें ग्रे नजर आती है। इसलिए टीवी जब भी हम ऑफ करते हैं तो ग्रे हो जाता है, क्योंकि उसके सामने जो शीट लगी हुई है वो फॉस्फोरस की शीट है, जिसका टेक्निकली कलर अगर आप कह लें केमिकली ग्रे कलर का, वो ग्रे कलर की शीट लगी हुई है। उसके पीछे जो है, जो इतना बड़ा हमें डब्बा नजर आता है, उस डब्बे के अंदर एक गन लगी हुई है जिसको हम कैथोड रे गन कहते हैं, ठीक है। दिस गन बेसिकली इमिट्स सर्टेन रेज, ये इमिट रेज करती हैं, एक एक रे जाके पूरी बेसिकली आपकी शीट पे गिरती है। तो अगर हम एक रे को ट्रेस करें तो एक रे जाके एक पार्टिकल पे, इस तरह से दूसरे पार्टिकल पे, इस तरह से तीसरे पार्टिकल पे। अब उस रे की इंटेंसिटी कितनी है, उस रे की वैल्यूज कितनी है, उसकी कैलकुलेशन कितनी है, बेस्ड ऑन दैट दिस कैथोड फॉस्फोरस इज बर्न, जिसको हम कहते हैं कि जब रे इस फॉस्फोरस शीट पे स्ट्राइक करती हैं उस वक्त दिस रेज बेसिकली आर बर्न, दिस पिक्सेल्स आर बेसिकली बर्न, जलते हैं। जलने के नतीजे में पता है कि रोशनी इमिट होती है। अब वो किस कलर में जल रहे हैं ये डिपेंड करता है कि किस तरीके से रे उस पे, किस कलर की रे हमें आके उसको हिट कर रही है, ठीक है, उसकी बेस पे तस्वीर बनती है। यही बेसिक मैकेनिज्म है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स का, जो कि साल हर साल हर टेलीविजन और हर कंप्यूटर मॉनिटर के अंदर इस्तेमाल किया गया है। फॉस्फोरस की शीट कैथोड रेज की लाइट इमिट की, बात समझ में आई, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं तो ज्यादा तफसील में नहीं, डिटेल में नहीं जा रहा, बिकॉज दिस इज क्वाइट बेसिक, यू शुड हैव नोन। This is basically how the cathode ray tubes, in other words, works. इसीलिए हम कहते हैं कि यार टेलीविजन या मॉनिटर के करीब नहीं बैठो, क्योंकि उसमें रेज आती हैं। तो ये हकीकत है कि इसके पीछे जो गन है इसमें रेज होती हैं, जो कि आपकी लाइट इमिट करती हैं, जो कि ये मॉनिटर्स आपकी आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए फिर इसको बहुत जल्दी हमने एलसीडी और एलईडीज के थ्रू रिप्लेस किया गया था न्यू टेक्नोलॉजी के तहत, क्योंकि उसमें फिर थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज्म, एटलीस्ट दोस रेज आर नॉट सो harmful as compared to these rays. इसीलिए टेलीविजन करीब अगर आप 5 मिनट के लिए बिल्कुल करीब आके बैठो तो आपके आईज में बहुत पेन होना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, because they do have this chemicalized cathode rays. सेकंड, मॉनिटर अगर बहुत देर तक चल रहा है उसके बाद जब आप बंद करोगे, if you move your finger around it you can feel the charge. ये वही चार्ज है कि जब पार्टिकल्स पे रेज हिट करनी तो मैग्नेटिक चार्ज क्रिएट होता है, वो चार्ज वहां पे मौजूद हो रहा होता है। So this is basically because of that, ठीक है। Obviously the process is quite complex and बहुत सारे इसमें mechanisms हैं, so I will not be able to discuss that. ठीक है, if you want to discuss basic mechanism is written in the side the book, you can go into it. Now how basically those rays progress, those rays basically use a principle called raster scan. Okay, raster scan is basically a principle by which they mean that the जो कैथोड की रेज आती हैं वो पहले यहाँ से स्ट्राइक करेगी, वो यहाँ तक गई, फिर वापस यहाँ पे जंप किया, फिर यहाँ से स्कैन किया, फिर वापस यहाँ पे जंप किया,
फिर यहाँ से यहाँ तक गई, then again it jump, then again goes from this point and then so on so forth करते हैं। यहाँ पे जब पहुंचे तो वापस स्टार्ट पे जंप करेगी। It is something like interlacing. Interlacing भी वहीं से निकली है। This is something called interlacing. आप कह सकते हैं सेम प्रिंसिपल के तहत जिस तरह हमने वीडियो को हमने कहा था उसके अंदर भी इंटरलेसिंग होती है। बट इसको हम सीआरटी की टर्म में, मॉनिटर के टर्म में रास्टर स्कैन कहते हैं। रास्टर मींस स्कैनिंग योर स्क्रीन मॉनिटर लाइन बाय लाइन। तो जो कैथोड की गन्स आपके स्क्रीन को हिट करती हैं वो लाइन बाय लाइन हिट करती है, ठीक है। ऑब्वियसली इसको हम कहते हैं जितनी स्पीड से वो हिट करके वापस यहाँ पर जाती है और फिर वापस हिट करती है, इसको रिफ्रेश रेट भी कहा जाता है, ठीक है। मॉनिटर का रेट कितना है, कितनी क्विकली वो आपकी स्क्रीन को रिफ्रेश कर रहा है एवरी सिंगल टाइम। सो दिस इज व्हाट बेसिकली हैपेंस इन रास्टर स्कैन। इसको हम रिफ्रेश रेट कहते हैं। ये वो वर्ड है जो कि शायद आपने इसको अक्सर बाय डिफॉल्ट 60 हर्ट्ज तक सेट किया हुआ होता है। मोस्ट मॉनिटर्स बेसिकली यूज दैट। तो 60 हर्ट्ज मींस 60 साइकिल्स पर सेकंड, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट है हमारे पास। तो 60 साइकिल्स मींस कि पर सेकंड के अंदर आपका जो कैथोड रे ट्यूब है वो 60 टाइम्स आपके मॉनिटर को स्कैन करता है। इतनी फास्ट बेसिकली वो स्कैनिंग हो रही होती है, ठीक है। So 60 hertz basically means this is a refresh rate. That 60 hertz means hertz is a cycle of frequency. We all know that. That means a number of cycles per second. So in this case, it means that your screen is being raster scanned 60 times per second. That is how it quickly goes about it. उसके बाद आते हैं डिस्प्ले in terms of field और LED, field emission display, FED based systems, और उसके अलावा जो आजकल जैसे हमारे पास for example LEDs आ गई हैं। इनके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल देयर आर phosphorus elements in terms of pixels. Each pixel is then charged electronically using some electronic sheets. Instead of emitting the particular cathode rays, क्योंकि असल इशू ये है कि मुझे सेम स्क्रीन पे उस पर्टिकुलर कलर के पिक्सेल्स को बर्न करना है या लाइट करना है। तो instead of using cathode rays, what they did was they used a phosphorus sheet, which particular phosphorus very particularly defined in terms of its color। और पीछे उन्होंने एक कैथोड की इलेक्ट्रॉनिक प्लेट रखी कि उन पार्टिकल्स को आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक गन दे चार्ज दैट पार्टिकल शीट विद इलेक्ट्रिसिटी। और उसके तहत फिर इसको हमने बर्न किया और इलेक्ट किया, जिसकी वजह से जो साइज थी वो हमारे पास बड़ी कॉम्पैक्ट हो गई। तो ये बेसिक जो मैकेनिज्म है एफईडी इमिशन डिस्प्ले का, ये जो आजकल हम लोग डिस्प्ले सिस्टम यूज कर रहे हैं, एलईडी हो गया, आपका प्लाज्मा हो गया, एलसीडी सिस्टम हो गया, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उनके अंदर ये किया जाता है। एलसीडी उसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल है, मींस एक क्रिस्टलाइन शीट उसके अंदर मौजूद होती है, उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज गुजारा जाता है, जिस चार्ज के तहत उसमें अगेन वही लाइट जाती है, तो लाइट के ऐसे पिक्सेल्स इल्यूमिनेट होते हैं। तो वो बहुत पतली शीट होती है, उसके अंदर बेसिकली वो क्या कहते हैं LCD liquid crystal display that has the liquid crystal inside two electronic plates or two glass plates। तो दो ग्लास प्लेट्स होती हैं, उनके बीच में एक इलेक्ट्रॉनिक उनके बीच में इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज एक शीट लिक्विड मौजूद होता है जिसको क्रिस्टलाइन लिक्विड कहा जाता है। दो ग्लास जो LCDs होती हैं, वो LCDs के अंदर दो प्लेट्स हैं, दो प्लेट्स के बीच में लिक्विड है, उस जिसको हम क्रिस्टलाइन लिक्विड कहते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज हो जाता है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो क्रिस्टल, क्योंकि हमें पता है जब लाइट पास होती है तो कलर्स में ब्रेक होता है, उसी सेंस में वो इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होता है और रोशनी इमिट करता है, तो हमें पिक्सल बाय पिक्सल नजर आता है। ऑब्वियसली बड़ा कॉम्पैक्ट मटेरियल होता है, तभी हमें 90 के एंगल से दिखाई देते हैं। हाँ, तभी हमें वो मॉनिटर, इनका जो एडवांटेज है हमारे पास सीआरटी का, उसका व्यूइंग एंगल जिसे हम कहते हैं ज्यादा होता है कि आप थोड़ा साइड से भी, इस साइड से भी अच्छी तरीके से देख सकते हो। एलसीडी को आपको बिल्कुल फ्रंट देखना पड़ता है क्योंकि पार्टिकल्स बिल्कुल फ्रंट पड़े, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो अगर आपने चेंज कर दिया तो स्क्रीन आपकी बिल्कुल चेंज रहेगी। फॉर एग्जांपल मॉनिटर्स वगैरह अगर आप नोट करो तो। उसके बाद आता है प्लाज्मा डिस्प्ले। Plasma displays were again become very quite common. Plasma displays again uses two glass plates. Between the glass plates there was plasma gas. उसके बीच में प्लाज्मा गैस मौजूद होती है, फिर उस गैस के अंदर से इलेक्ट्रिकली चार्ज को पास किया जाता है, और जब वो चार्ज प्लाज्मा नाइट्रॉन गैस के थ्रू पास होता है उसके वो भी फिर जलती है गैस। तो जब वो जल रही होती है तो पिक्सल की फॉर्म में रोशनी जनरेट कर रही है, ठीक है। ऑब्वियसली द मैकेनिज्म गोस कॉम्प्लेक्स बट जस्ट इन अ नटशेल के हमारे पास होता है क्या, तो LCDs के अंदर दो इलेक्ट्रॉनिक्स या दो ग्लास प्लेट्स के बीच में लिक्विड मौजूद होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रिसिटी उस पिक्सेल्स को, उस प्लाज्मा को जलाया जाता है, सॉरी उस लिक्विड को।
प्लाज्मा के अंदर गैस होती है, उस गैस को फिर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, चार्ज प्लेट्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है कैथोड की, कि कहाँ पे क्या पिक्सल बर्न हो, किधर क्या हो। फिर आजकल हम एलईडीज पर आ गए, ठीक है। एलईडीज बेसिकली फॉर एग्जांपल जो मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी हमारे पास अब मोस्टली यूज हो रही हैं, एमोलेड डिस्प्लेस आ जाते हैं वगैरह वगैरह। सो दे बेसिकली यूजेस वेरी 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 माइन्यूट स्मॉल एलईडीज, ठीक है, इसको हम यूं कह लो। वो एलईडीज में हर इंडिविजुअली फिर हमारे पास कंट्रोल हो रही होती है। अगर आपके पास स्क्रीन है, उसको अगर सूरज में रखो और उसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखो तो यू कैन सी द लाइट्स रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन की वजह से आपको उसकी थोड़ा सा स्ट्रक्चर नजर आता है कि इलेक्ट्रिसिटी उसकी कलर किस तरह से बाउंस हो रहे हैं। तो कलर से आपको अंदाजा हो जाता है कि भाई उसकी फॉर्मेशन जो है एलईडीज की कैसे है। या फिर समटाइम्स हम पानी के 2-3 ड्रॉप्स स्क्रीन के ऊपर रखते हैं और फिर उसको लाइट के थ्रू पास करते हैं कि भाई सूरज के सामने रखा, लाइट पास हो रही, तो उसका जो रिफ्रैक्शन क्रिएट होता है उससे भी फिर हमें जो है ना थोड़ा सा वो उसके अंडरलाइंग जो कलर्स की कंपोजिशन है या ग्लास की, सॉरी एलईडी की, वो फिर हमें नजर आ जाती है। थोड़ा सा करके देखना अगर आप यू कैन प्ले विद योर मोबाइल फोन। मैंने वही कहा ना कि सब चीजें इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होती हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी 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 मोबाइल पर एलसीडी सेम ना है, एलसीडी there's a difference। मैंने वही कह रहा हूँ कि हर स्क्रीन की जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्क है। आप सीआरटी की बात कर रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर। If you're talking about LCD, LCD is called liquid crystal display. That is completely different structure. Plasma has a different structure. LED based displays has a different structure. Nowadays AMOLED आ गए हैं, AMLOLED, मतलब सुपर, और उसके बाद आई थिंक आजकल जैसे S4 यूज कर रहे हैं, सैमसंग यूज कर रहा है सुपर AMOLED डिस्प्लेस या रेटिना डिस्प्लेस। उनके बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर हर किसी के डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एप्पल की जो स्क्रीन है उसका स्ट्रक्चर, उसके जो पिक्सेल्स की फॉर्मेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट सैमसंग इज शोइंग, ठीक है। दोनों में फर्क है। अब मैग्नेटिक कहाँ जब हम मूव करते हैं किसी के ऊपर तो थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर हमें अल्टरेशन और बॉदरेशन नजर आती है। दैट इज बिकॉज मैंने वही कहा कि स्क्रीन इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज होती है, तो चार्ज जहां पे मौजूद होगा जब मैग्नेट पास करोगे तो उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन किसी स्क्रीन पे नहीं भी करता, अगेन बिकॉज उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, ठीक है। लाइक मोबाइल डिस्प्लेस, बिकॉज अगेन मोबाइल्स आर सो स्मॉल, दे आर मोर प्रोन टू बी नियर एनी सिंगल कंपोनेंट, एनी रैंडम ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्योंकि छोटी स्क्रीन है तो उसको कहीं भी किधर भी किसी भी स्क्रीन पर मौजूद कहीं भी हो सकते हैं, तो मैग्नेट के पास भी हो सकती है या जनरली किसी कंप्यूटर के ऊपर दो कहीं भी हम रख रहे हो, तो इसीलिए उनको थोड़ा ज्यादा केयरफुली डिजाइन किया गया ताकि वो इस मेंटेन इंटरफेरेंस को अवॉइड कर सकें, इसको क्या कहते हैं रेजिस्ट कर सकें। सेकंड, उसका स्ट्रक्चर मैंने वही कहा कि आप अगर आप थोड़ा सा इसका बल्ब लगे होते हैं, इंस्टेड ऑफ मैग्नेटिकली चार्जिंग द एंटायर शीट, ठीक है, उसके अंदर बिल्कुल स्मॉल एलईडीज लगी होती हैं, इन अदर वर्ड्स, तो वो बल्ब होता है उसमें मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। इसी वजह से जब हम मैग्नेट मूव करते हैं तो हमें नजर नहीं आ रहा। जो कैलकुलेटर की स्क्रीन है उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उस पर अगर आप फिंगरप्रिंट करोगे तो फिर डार्क ब्राउन कलर का पूरा फैलने शुरू हो जाता है अगर आप कैलकुलेटर की स्क्रीन में फिंगरप्रिंट करो या डिजिटल वॉच के ऊपर प्रिंट करो। तो वही मैंने कहा कि हर स्क्रीन का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हो सकता है कि एक मोबाइल पे आपको नजर आए, हो सकता है दूसरे पे ना आए, बिकॉज दोनों के एलईडीज में डिफरेंस होगा। अब कौन सी में क्या डिफरेंस इतना हो जाएगा? Field emission basically display again based on same principle. It uses a front-end anode sheet that has a phosphorus element in form of pixels. So for example, ये एक pixel, ये एक pixel, ये एक pixel, ये एक pixel. It creates a block of random pixels which each having single color. ठीक है, for example. तो ये obviously बड़ा congested complex होता है, इतने बड़े-बड़े gaps उसमें मौजूद नहीं होते. तो ये just एक example के तौर पे दिखाया गया. So these are for example phosphorus, और इन each phosphorus pixels को इसके अंडरलिंग एक हमारे पास कैथोड की शीट मौजूद होती है जो कि इसको फिर चार्ज करती है, जो इसको लाइट प्रोवाइड कर रही होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही होती है, जिसकी वजह से इसमें से फिर लाइट इमिट होती है। ठीक है, बेसिक सिंपल प्रिंसिपल है। अगेन ये सिंपल टर्मिनोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि जो थोड़ा समझ में आना चाहिए। क्या एलसीडी के अंदर अच्छा लिक्विड क्रिस्टल होता है, उसमें से बिजली पास होती है। प्लाज्मा के अंदर नियॉन गैस होती है, इनफैक्ट नियॉन गैस एक है जो प्लाज्मा टीवी के अंदर होती है, उस गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। उसके बाद एलईडी जो है उसके अंदर स्मॉल एलईडी लाइट्स लगी हुई होती है,
ठीक है। जो आजकल स्क्रीन्स आ रही हैं आई बिलीव उनके अंदर एलईडीज हैं, इसीलिए उनको फॉर एग्जांपल एमोलेड या सुपर एमोलेड इस तरह से कहा गया, लेकिन उसमें एलसीडीज भी बनी हुई होती हैं, एलईडीज भी आ रही हैं, रेटिना डिस्प्ले है, दैट इज अ डिफरेंट प्रिंसिपल। तो उनके अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजीज हमारे पास आती हैं। फॉर एग्जांपल वही मैंने कहा कि मोस्टली सैमसंग एमोलेड डिस्प्ले यूज कर रहा है। उसका बेसिक एक चीज हम लोग ये करते हैं कि 2-3 वाटर ड्रॉप्स उस पर ड्रॉप करो और सनलाइट में रखो तो या किसी भी रोशनी में, तो यू कैन सी द लाइट रिफ्रैक्शन अगर वाटर ड्रॉप्स उस पर मौजूद है। तो वो लाइट रिफ्रैक्शन की वजह से आपको उसके आरजीबी कलर्स और उसकी थीम समटाइम्स नजर आती है हमारे पास, और बल्कि समटाइम्स नहीं, मोस्टली मैंने तो चेक किया, मेरे अगेन ऑन माय सेल फोन आई हैव डन दैट। अब मे बी आपके ऊपर वो ना हो, ये डिफरेंट थिंग है या हियर माय हेतरी मोबाइल में कराइंदम तो वो कितना नजर पे नहीं, ठीक है। सो अगेन एज अ सेल फोन सबके पास मौजूद है यार, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा नहीं पता चला पूरा गिलास उठेल दिया, गिलास उसके ऊपर है, मोस्टली वाटर प्रूफ नहीं होते, सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स थोड़ा सा गिरा के लाइट रिफ्रैक्ट चेक करो, पता चला गिलास उंडेल दिया, फिर सर मोबाइल तो गया, अब आपकी जेब में खर्चा है। सो basically image representation in raster, this is again something we have done, that each image is displayed in terms of a pixel, each pixel consists of RGB, ठीक है, ये चीज हम कर चुके हैं। raster display systems, I'm not going to talk about this in much detail, ये again वही monitor की mechanism है कि how monitors basically tend to work, but again raster display basically means that we have a display command, this display controller, फिर उसका frame buffer, फिर video controller जो आपको display कर रहा होता है। This in other words is just showing you the mechanism of your VGA card, ठीक है। How does a VGA card or how does the basic instruction of our graphics is processed onto our monitor? We give it a certain display command, it goes to the display controller, which basically is there. For example, your keyboard mouse input goes into it, which is basically your processor, your VGA processor. Then from there, there's a frame buffer that stores the instruction. It goes to video controller and displays onto the monitor, and then process goes reversibly. ठीक है? And suddenly क्या हो गया इसको? ठीक है, okay. Then these are basic terminologies. Again, just make sure you remember them. These terminologies basically pixel. हम already discuss कर चुके हैं, aspect ratio, dynamic range, resolution, screen space, object space. These are few terms that we have heard. Specifically, be concerned with these two words because we would be using these two words in future sections. Screen space is basically a discrete Cartesian coordinate system of the screen pixels. सबसे पहले चीज, what do we mean by कार्टेशियन कोऑर्डिनेट? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसे कहते हैं, ठीक, मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होती है, जबरदस्त, मुझे लगा था फिजिक्स का टर्म है। मल्टीप्लाई होता है, चलें मैथमेटिक्स में और क्या होता है ऐसे? कोऑर्डिनेट्स को मिलाते हैं। सॉरी, जो सिमिलर होंगे कोऑर्डिनेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे? नहीं, These are talking about coordinate system. Coordinate से क्या मतलब? दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब एक्सिस कौन सी हमारे पास? X, Y and Z. So basically this means x axis and y axis. ठीक है? A discrete Cartesian coordinate system, meaning that whenever we use the word screen space, this basically means that we are referring to a discrete Cartesian coordinate. In other words, x and y axis. In other words, it means that your screen जो हमारी measure होती है, वो भी x and y के अंदर ही measure होती है. And obviously, the units do multiply. तो जब हम लिखते हैं, for example, 640 into 480, तो ये multiply हो रहा है within Cartesian coordinate, meaning this is x axis, this is y axis. तो इसके अंदर basically that is thing. And this coordinate system is quite important because we would be using these terminologies in future lectures as well. Then object space is basically a Cartesian coordinate system of the universe in which the objects to be displayed are embedded. Okay, object space is basically what is a term that we use for objects. Screen space specifically सिर्फ screen के हिसाब से use किया जाता है कि screen कैसे हमारी बनी हुई है. Object space मतलब उस particular object के लिए. तो वो एक यूनिवर्सल स्पेस है जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है. वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है, तो उसको फिर हम एक्स एंड वाई के अंदर ही अगेन दोबारा मेजर कर रहे हैं, दैट वेयर इन एक्स एंड वाई एक्सिस. बट वो स्क्रीन के स्पेस के हिसाब से कंसर्न नहीं है, ठीक है. दे आर नॉट कंसर्न विद द स्क्रीन स्पेस, दे आर इनसाइड द स्क्रीन स्पेस. तो वो एक वर्चुअल उनकी अपनी यूनिवर्स है. उस यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट कहाँ पे मौजूद है, उसको फिर हम कैसे मेजर करेंगे. सो दिस इज व्हाट वी से ऑब्जेक्ट स्पेस रिफर्स टू. स्क्रीन स्पेस, स्क्रीन की एक्स एंड वाई एक्सिस के हिसाब से बात हो रही है.
Object space is something we refer to individual object. ठीक है? Just remember these terminologies. Obviously, as I said, we would be discussing them in future lectures, so you would be knowing where how these goes. उसके बाद scan conversion. Now basically we start that how each object is basically drawn onto our screen. In fact, I didn't had the intention of discussing LCDs and LEDs in this lecture. मेरा था कि मैं directly यहाँ से start करूँगा, but because इसके बहुत लंबा ये भी chapter है और notes इसके sections बहुत ज़्यादा है. Anyway, scan conversion. What do we mean by scan conversion? Scan conversion is a word जो कि शायद हमने multimedia में भी generally refer किया था, but in this case basically it refers to of drawing objects. ठीक है? Same as raster scan. Same as raster scan. जिस तरह से raster scan होती है, पर raster scan हम word use करते हैं monitors के लिए. कि monitors जब आपके screen को display कर रहे हैं, तो एक कोने से display होता है, नीचे जाते हैं, फिर दूसरे कोने से end में गए, तो ये sequentially scanning हो रही है. ठीक है? Similarly, whenever we create graphics, whenever we display the objects onto our screen, तो उसको display कराने के से पहले जब हम उसको create कर रहे हैं, तो उस creation process को हम scan conversion कहते हैं. क्योंकि उसी तहत के मॉनिटर आपका बन रहा है, तो मॉनिटर भी आपका लाइन बाय लाइन जा रहा है. Hence, स्कैन कन्वर्जन में हम कहते हैं कि भाई मुझे पिक्सल बाय पिक्सल उस लाइन को ड्रॉ करना है. इन अदर वर्ड्स, जब आपका शेप ड्रॉ होता है तो वो पहले घूमता हुआ आएगा, एक पिक्सल बनाएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर दूसरा पिक्सल, फिर तीसरा पिक्सल, फिर चौथा पिक्सल, फिर पांचवा पिक्सल. इसी तरीके से इट विल स्टार्ट टू पुट पिक्सल 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 सीक्वेंशियली. इस प्रोसेस को कि वो एक एक पिक्सल को कैलकुलेट करेगा, एक एक पिक्सल को प्लॉट करेगा. ठीक है? दिस इज कॉल्ड स्कैन कन्वर्जन. Generally, we take the algorithm, we have the algorithm, based on the algorithm, we get the values. Once we have the values, we transfer that values onto the screen. Screen हमें पता है कि पिक्सल बाय पिक्सल फॉर्म है. तो जब स्कैन कन्वर्जन का मतलब ये कि पहले वो एक पिक्सल बनाएगा, फिर नेक्स्ट राउंड में दूसरा, फिर तीसरे राउंड में तीसरा, फिर चौथे राउंड में चौथा. And similarly, together it will appear to us as a line. So the process basically means that we need to have an algorithm. Based on that algorithm, we calculate individual point by point pixel values, and then once we have the point by point pixel values, we draw the line. बात समझ में आई? स्कैन कन्वर्जन कहता है कि यार क्या करो कि मुझे लाइन बनानी है. तो लाइन बनाने के लिए पहले हमें एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा. ठीक, हमने एल्गोरिथम लिखा लाइन का, उसको सॉल्व किया. सॉल्व करने के बाद अब मसला है कि लाइन को पॉइंट स्क्रीन के ऊपर किस तरह से ड्रॉ करूं. ठीक है? कैसे वो इंस्ट्रक्शन दूं. तो वो इंस्ट्रक्शन भी वो कहता है कि मुझे लाइन बाय लाइन देनी होगी. जिस तरह से कन्वर्जन हो रही है, एक लाइन दी, फिर दूसरी लाइन आई, फिर तीसरी लाइन आई. ठीक है? इसीलिए हमने रास्टर डिस्प्ले को थोड़ा सा डिस्कस किया कि रास्टर डिस्प्ले का मकसद ये, या रास्टर स्कैन का, मॉनिटर आपके या टीवी आपके जो डिस्प्ले देते हैं, वो क्या करते हैं कि एक कोने से स्टार्ट किए, एंड में गए, फिर वापस स्टार्ट में गए. ठीक है? जिस तरह से हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ये चीज. ठीक है? This is how basically our CRT monitors tends to work. कि वो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ पे गए, फिर वापस जंप किया, तो वो लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं. इसी प्रिंसिपल के तहत बेसिकली ग्राफिक्स को डिफाइन किया गया था, और इसीलिए वो टर्मिनोलॉजी, सिमिलर टर्मिनोलॉजी यूज की गई है. कि ये भी वही स्कैन कन्वर्जन कर रहा है. जिस तरह से रास्टर स्कैन हो रहा था मॉनिटर के अंदर, सेम प्रोडक्ट्स इनटू व्हाट वी कॉल स्कैन कन्वर्जन. डेफिनेटली अगर इसको हम डिफाइन करें, कन्वर्जन फ्रॉम जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन of an object to pixel in raster display. कि एक geometrical representation है, algorithmic representation है, उसको मैं किस तरह से object को pixel का pixel represent करूं screen के ऊपर. ये चीज कहलाती है हमारी scan conversion. या इसको हम यूं भी define कर सकते हैं, किसी एक दूसरी बुक में ये लिखा है that the process of representing continuous graphical objects, जो continuous मेरे पास एक graphical object है, उसको discrete pixels में किस तरह से मैं identify करके draw करूं. एक कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, उसको डिस्क्रीट एक एक करके हम किस तरह से ड्रॉ करें. ठीक है? तो दिस इज व्हाट वी कॉल इन टर्म्स ऑफ स्कैन कन्वर्जन. अब इसको मैं भी अगला प्रॉब्लम एक सॉल्व कराऊंगा, उसमें ये चीज क्लियर हो जाएगी. द प्रॉब्लम इज दैट बेसिकली लेट्स कम हियर दिस इज. ठीक है? अच्छा, बल्कि ये थोड़ी सी ये यहाँ पे समझ में आया कि कन्वर्जन हो क्या रही है. चलो, नेक्स्ट स्टेप में है हमारे पास रिप्रेजेंटेशंस. नाउ दिस इज जस्ट जनरल मैथमेटिक्स. I won't discuss these things too much. That we have implicit formula, we have something called explicit formula, and we have something called parametric formula.
implicit formula में constraints expressed as f of x and y is equal to 0, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू को 0 के बराबर कर रहे होते हैं फॉर एग्जांपल, दिस इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फॉर्मूला। एक्सप्लिसिट फॉर्मूला इनमें के अंदर हम फंक्शन को किसी दूसरे वैल्यू के बराबर कर रहे होते हैं, नॉट 0 के, बल्कि फॉर एग्जांपल y is equal to f of x, ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। एंड देन वी हैव अ पैरामेट्रिक फॉर्मूला जिसमें फिर हमारे पास थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आ जाती हैं, ओके, दैट x is equal to f of x and t, उसी पैरामीटर्स को हम उसके अंदर फंक्शन के अंदर पुट करके इसकी फाइनल वैल्यूज निकाल रहे हैं। ये चीजें थोड़ी सी याद रखना। नेक्स्ट, इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन। नाउ दिस इज एन इम्प्लिसिट इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इस इक्वेशन पे मैं अभी तफसीलन थोड़ी सी गुफ्तगू करता हूं आगे चल के। फिलहाल इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन a of x plus b of y plus y is equal to 0, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको हमने इम्प्लिसिट के तहत लिखा है, उसी इक्वेशन को हमने एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया है। यही इक्वेशन को अगर मैं एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने बैठूं तो मैं लिख रहा हूं y is equal to mx plus b, जिसके अंदर m की वैल्यू हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने कहा अभी मैं तफसीलन बात करता हूं। Then we have parametric representation. Then how do we again represent the same line equation in a parametric formula? ठीक है। Now the problem that we have to discuss now is how do we create line? How do we use these equations to create line? ठीक है। टाइम अब हो गया 10 मिनट है अभी यार, ठीक है ना, बरोबर जल्दी करवा रहे हो। ओके ओके ओके, साजू थोड़ा क्या दिया था अली में। Okay, now whenever we talk about scan conversion, means how do we convert the line into how do we create algorithm? Generally line के हिसाब से या in general circle के हिसाब से मेरे पास 4 algorithms हैं। We say we have a polynomial method, we have a DDA, differential difference analyzer, we have Bressenden algorithm, and we have a midpoint method. These are generally 4 algorithms that we use to draw a line or circle or any other objects using these shapes. ठीक है, जिसमें पैराबोला भी आ गया, जिसमें स्प्लाइन भी आ गया, जिसमें रेक्टेंगल वगैरह भी आ गया। So if I have to draw line, again line is basics of most of the shapes. अगर मुझे रेक्टेंगल भी बनाना है, I need 4 lines. अगर ट्रायंगल बनाना है, I need 3 lines. मुझे पेंटागन बनाना है, I need 5 lines. मुझे हेक्सागन बनाना है, तो लाइन अगर मुझे आ गई, तो I can create any shape based on that. Then circle is the another form. So if I have the circle, I can use the same circle to create a parabola. I can use the same circle to create an ellipse or cylinder or whatever shape I want. तो ये दो बेसिक स्टार्टिंग हमारे पास शेप्स हैं। Then obviously we will talk about other shapes as well. So we start with line. अगर मुझे लाइन ड्रॉ करनी है तो क्या करूं? Again लाइन के लिए भी ये 4 एल्गोरिथम्स आते हैं। We would be discussing these algorithms individually. ठीक है? Now here the mathematics basically start. If I have to draw a line, the basic equation of line is y is equal to mx plus b. This is the basic equation, और ये वो इक्वेशन है जो कि हम बहुत ज्यादा ग्राफिक्स के अंदर यूज करते हैं। ये सिंपल इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इक्वेशंस इन ग्राफिक्स। ग्राफिक्स के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, नॉट ओनली इन ग्राफिक्स बट इन फैक्ट इन अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर विजन के अंदर जाएंगे तो वहां भी अगर आपको कोई स्कैनिंग करनी है पिक्सेल्स की लाइन बाय लाइन, तो वो क्योंकि एक सीक्वेंस में जाना है तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी। So this is one of the powerful and very effective graphics equation that we will be using. In fact, even using this equation, we generate circle as well. तो ये equation किसी हद तक हम circle के अंदर भी use करते हैं, spline के अंदर भी use कर रहे होते हैं। तो बड़ी slopes के बनते हैं basically, ठीक है? So basically, what this equation is that this equation uses y is equal to mx plus b, जिसमें m हमारे पास is the slope. m define करता है कि slope है हमारे पास। X is the x coordinate and b is the y intercept on positive y axis. b defines कि y axis में उसकी intercepting क्या है, ठीक है? So this is the basic equation that we use. Then using this equation we start and we create line. Now what do we have? We have a basic initially polynomial method, Pell algorithm. अब line कैसे हम draw करें? We say we use y is equal to mx plus b. Again, as I said previously, this is the course where we implement mathematical equations. Obviously इस इक्वेशन के पीछे पूरा एक थ्योरम है that how this equation was actually driven and defined. ठीक है, इस इक्वेशन के पीछे पूरा एक थ्योरम है एंड वो मैथमेटिकली डिफाइन किया हुआ था ज्योमेट्री के अंदर, एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर। हम उस इक्वेशन को सिर्फ इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इनटू नोइंग द बैक एंड कि यार ये थ्योरम कैसे डेवलप हुआ या इक्वेशन कैसे ड्राइव हुई, तो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स में खुद ही डिग इन करना पड़ेगा।
You have to go and do it yourself. For our sake, we are only concerned majorly with how we are going to use this equation to draw a graphical line. As simple as that. So we are going to implement this equation, not drive this equation. तो इसको मैं drive नहीं कर रहा, ठीक है? Assuming मैं mathematician से भरोसा करते हुए कि उन्होंने equation को सही drive करके मुझे दिया है, मैंने इसको implement करना है, ठीक है? मैं किसी दूसरे mathematician के काबिलियत पे सवाल नहीं उठाना चाहता, ठीक है? So we take that this is the basic polynomial equation, scan conversion equation that is used to draw my line. How do we draw the line? अब line draw करने के लिए सबसे पहले दो चीजें जो है वो सबसे important है. What we call start point and end point. Without knowing these 2 points, we cannot draw a line. Even on our graphic system, we need to provide these 2 lines. If these 2 points are not provided, हम line नहीं बना सकते. तो line बनाने के लिए 2 point. अब इन 2 points को mathematically हम represent करते हैं x1 and y1, x2 या y2. ठीक है? इसको x1, y1 starting point, ending point x2, y2. Now in some books it can be written as x0, y0, x1, y1. Okay, in some points they start from starting and ending 0 to 1. In some books they are written as x1, y1, x1 plus 1 and y1 plus 1. Okay, this basically means you calculate xn and this becomes n plus 1 and n plus something like that. ठीक है, वो प्लस 1 लगा देते हैं उसके अंदर ताकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसमें प्लस 1 कर दो तो आपको नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा. ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल नोटेशन. So if you read the books, don't worry about this. These basically all mean the same thing: starting point and ending point. So once we have a starting point x0, y0, and an ending point y1 and x1, knowing that this is the grid of my pixels, how should I draw the line? Now, the key point here to note is कि जब भी मैं लाइन मुझे स्ट्रेट बनानी है, लेकिन मुझे पता है कि पिक्सेल्स की जो फॉर्मेशन स्क्रीन के ऊपर मौजूद है वो स्ट्रेट नहीं है, वो डायगोनली नहीं है, वो एक स्टैंडर्ड रो एंड कॉलम के फॉर्म में मौजूद है. ठीक है, यही वजह है कि जब भी मैं लाइन बनाता हूँ तो वो लाइन हमें जैगी नजर आती है, वो आगे पीछे नजर होती है. ठीक है, तो उसकी वजह यह है कि if I have to draw the line from here, now there is no pixel or no corner point here. Hence वो ये पूरा पिक्सल को इल्यूमिनेट करेगा, hence वो इस पिक्सल को इल्यूमिनेट करेगा, वो इस पिक्सल को इल्यूमिनेट करेगा, वो इस पिक्सल को इल्यूमिनेट करेगा, जिसकी वजह से जो लाइन है वो बज़ाहिर हमें लगेगी सीधी जा रही है, पर दर हकीकत वो स्क्वायर ब्लॉक्स के अंदर बनी हुई होती है. Just like this. If I have to draw the line, it takes the pixels that this line is supposed to cross और फिर उस पिक्सेल्स को वो बेसिकली ऑन कर देती है, जिसकी वजह से लाइन हमें जो है कुछ जाएगी नहीं नजर आती. ऑब्वियसली इसलिए बड़ा शार्प कॉर्नर्स है. इस शार्प कॉर्नर्स को खत्म करके एक स्मूथ लाइन बनाने के लिए उसको हम कैसे बनाएं, उसके लिए फिर एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है एंटी अलियासिंग का. एंटी ठीक है, दिस इज अ प्रिंसिपल दैट इज यूज्ड टू स्मूदन द लाइन. इन अदर वर्ड्स ये आगे हम डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, लेकिन जस्ट मैं जनरली बता रहा हूं. अगर इसको मैं अभी आगे हम एक्सपेरिमेंट करेंगे चल के, अगर आप MS पेंट खोलो उसमें लाइन बनाओ और जूम इन करो तो आपको ये एग्जैक्टली चीज नजर आना शुरू हो जाएगी. ठीक है, सो दैट इज बिकॉज कीपिंग इन माइंड दैट आवर पिक्सेल्स आर अरेंज्ड इन अ स्क्वायर पैटर्न इन रो एंड कॉलम फॉर्म, एंड व्हेनेवर वी हैव टू क्रिएट अ डायगोनल लाइन तो वी क्रिएट अ प्रॉब्लम. अगर वो स्ट्रेट है horizontal या vertical then there is no issue, but if it is vertical in terms of diagonally तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. ठीक है, वो ब्लॉक नजर आता है. अब इशू ये है कि यूजिंग दिस इक्वेशन हाउ डू आई सॉल्व दिस. तो यहाँ पे m हमने कहा स्लोप को डिफाइन करता है. m is used to define this particular slope. This m is solved using y0 minus y1 upon x0 minus x1. This is the basic equation of slope. ठीक है, दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ स्लोप. अगेन ग्राफिक्स के अंदर कहीं भी मुझे स्लोप वर्ड अगर आ जाए और उसको कैलकुलेट करना है तो ये वो इक्वेशन है. अगेन दिस इज अनदर डिफाइंड ट्रस्टेड एल्गोरिथमिकली प्रूवन स्लोप इक्वेशन. ठीक है, जो x0 y0 minus y1 upon x0 x1 minus
तो बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को बड़े में से छोटे को माइनस करना है। ओके, और इसी चीज को फिर हम समटाइम्स आगे यूज करते हैं, डेल्टा x इज इक्वल टू x1 माइनस x0 एंड डेल्टा y इज इक्वल टू y1 माइनस y0। इसको समटाइम्स dx भी लिखा जाता है एज वेल। Even if you go through the books, sometimes it might be written as dx and dy or delta x and delta y. These are how they calculate it. ये दो तीन इक्वेशंस थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो, आधी ज्यादा ग्राफिक्स हमारी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, ये दो तीन और बहुत सिंपल प्लस माइनस है, नो बिग डील। So now we have y is equal to mx plus b, a trusted equation of line. We use this equation to solve the slope, which is basically y1 minus y0 upon x1 minus x0. Then we have something called offset b. Now b is basically an offset. B is an angle where y intercept x-axis. In other words, a constant variable is sometimes. But if I have to calculate this by b value, अगर मेरे पास already given है, fantastic. अगर already मेरे पास given है, तो बड़ा जबरदस्त. अगर given नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? तो फिर मैं सिंपली इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई थिंक मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए आपको बताने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, ये सिंपली इक्वेशन से बचे हुए। सो वी हैव द बेसिक इक्वेशन। यस ब्रदर, b मैंने कहा कि b बेसिकली द पैरामीटर दैट इज यूज्ड कि आपकी लाइन y एक्सिस में कहां पे y एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, y एक्सिस को इंटरसेप्ट कहां पे कर रही है। m स्लोप हो गया, स्लोप वेयर द लाइन गोस, एंड y एक्सिस में उसको इंटरसेप्शन कहां पे मिल रही है। That is only parameter. In other words, generally हम इसको constant b कहते हैं। Some books के अंदर इस b की जगह पे c भी लिखा हुआ था, mx plus c for the constant variable. So you just have to keep that thing in mind. ठीक है, कि कहीं पे constant भी है या b भी word है, basically इसको refer कर रहा था। अब इंशाल्लाह next class में इसका problem है, we will solve that to understand how basically this shape is created. ठीक है, thank you very